वेटिंग फॉर गोडोट बाय सैमुअल बेकेट। इसमें मेजर थीम्स क्या हैं उन पे बात करते हैं। जैसे कि इसके टाइटल से ही शो होता है कि इसका मेजर थीम तो वेटिंग ही है। किसी मिस्टीरियस सेवियर का वेट हो रहा है। There are several other themes in Waiting for Godot which have captured critical tension. Some of these themes are triviality and boredom of human life, the theme of prevalence of suffering, the theme of ignorance, the theme of economic and intellectual exploitation, and the theme of meaninglessness of space, time, and identity. For proper understanding of the meaning of this play, हम इसके थीम्स को अलग-अलग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले द थीम ऑफ वेटिंग है। मैनी क्रिटिक्स से दैट दिस ड्रामा itself show that main theme of this play is waiting. Some even go to the extent of saying that this is not a play about waiting, is in itself waiting. There are a lot of views for not only does the reader wait with the Stragan and Vladimir फॉर द अराइवल ऑफ, इसमें सिर्फ व्लादिमीर और एस्ट्रागन ही गोडेट का वेट नहीं करते हैं, जो कि मिस्टीरियस गोडेट कोई आएगा तो उनको बचा लेगा, कोई सेवियर। इसके साथ रीडर्स भी वेट करते हैं, उनके साथ ही पेशेंटली वेट करते हैं, कुछ इस प्ले में कुछ होने का इंतज़ार करते हैं। वेटिंग कंडीशंस एवरीथिंग इन दिस प्ले। वेटिंग इज़ कंपल्सिव। जब एस्ट्रागन ने बोला था कि उनको अब चले जाना चाहिए, लेकिन व्लादिमीर उसको रिमाइंड करवाता है कि नहीं, उन्हें बोला गया है कि वो गोडेट का इंतज़ार करें। टू किल टाइम दे इंडल्ज इन रिपीटेटिव पॉइंटलेस एक्टिविटीज़, जिनमें कोई भी अच्छी बात नहीं है, कोई भी काम की वो हरकतें नहीं करते हैं, ऐसे ही मीनिंगलेस बातें करते हैं, पॉइंटलेस हरकतें करते हैं। Each act ends with the respite in waiting, but it is made clear that waiting must go on the next day and then the next until Godot comes, of which they don't seem to harbor any real hope. The next theme is waiting for Godot. The theme of waiting in the abstract combines with that of waiting for a mysterious stranger, which has obvious symbolic dimensions and implications. Godot may be a representative in Beckett's contemporary terms of some authority who has promised protection to the tramps that may be regarded as symbolic of the ordinary French citizens in France under the German occupation. में भी हो सकता है कि बैकेट ने गोडेट को सिंबलाइज किया हो फ्रांस के सिटीजन्स के लिए, कि किसी सेवियर ने उनके साथ प्रॉमिस किया हो कि वो उनको बचा लेगा जर्मन से, क्योंकि उस वक्त ये रेजिस्टेंस मूवमेंट थी। जर्मन लोगों ने फ्रेंच पर हमला किया था। और ही मे बी कंसिडर्ड द लिंक इन द रेजिस्टेंस मूवमेंट with Estragon and Vladimir, two resistance workers who have been told in contact him. Obviously, their man can come only when the cost is absolutely clear. Or waiting for Godot may be a symbol of man's waiting for a divine savior. हो सकता है कि वो किसी खुदाई किसी सेवियर का इंतज़ार कर रहे हों। Obviously, or this wait must go on and on. Vladimir says more than once that if Godot comes, they would be saved. This resemblance between God and Godot is too clear to be missed. Godot और God के दरमियान resemblance इस कदर है कि हम उसको मिस नहीं कर सकते। Moreover, the tramps are also afraid of Godot. वो उस mysterious Godot से डरते भी हैं। When Estragon suggests that they might drop Godot, Vladimir reminds him that he would punish them if they do that. Thus, the action of waiting for Godot becomes applicable to all Christianity. The very next theme of this play is the meaninglessness of life. वो जो टू ट्रैम्प्स हैं व्लादिमीर और एस्ट्रागन, वो किस तरह अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं वक्त को पास करने के लिए, टाइम पास करने के लिए। ये सब उनकी जो आमियाना हरकतें करते हैं, ये सब जाहिर करता है कि उनकी लाइफ किस कदर मीनिंगलेस है, कोई और काम ही नहीं रह गया उनके पास।
Estragon and Vladimir questions each other, contradict each other, abuse each other, and becomes reconciled to each other without any serious meaning or intention. एस्ट्रैगन जो है वो अपने शूज उतारता है, ग्रोप्स इनसाइड देम एंड शेक देम आउट एक्सेप्टिंग समथिंग टू फॉल आउट ऑफ देम बट नथिंग हैपन्स. व्लादिमीर डज द सेम विद हिज हैट विद द सेम रिजल्ट. कुछ भी नहीं होता. ये सब कुछ वो फजूल सी हरकतें करते रहते हैं टाइम पास करने के लिए, अपनी मीनिंगलेस लाइफ को कुछ आगे बढ़ाने के लिए. द नेक्स्ट थीम ऑफ दिस प्ले, द थीम ऑफ सफरिंग. वेटिंग फॉर गॉडट में जो सफरिंग का थीम है वो ह्यूमन कंडीशन का एक अहम पार्ट है. व्लादिमीर एंड एस्ट्रैगन सफ़र इंटेंसली एंड इंसेंसली. व्लादिमीर कैन नॉट लाफ. वो हंस नहीं सकता क्योंकि उसको स्टमक में पेन होती है. नहीं, स्टमक में नहीं, किडनीज़ में. उसको किडनीज़ का प्रॉब्लम है. एस्ट्रैगन फीट मेक लाइफ अ लॉन्ग टॉर्चर फॉर हिम. उसके पाँव उसके लिए टॉर्चर हैं. दे हैव नो वेयर टू रेस्ट देयर हेड. और एस्ट्रैगन जो है उसको डेली मारा गया है किसी गैंग की तरफ से. उसने पास्ट में बहुत ज़्यादा मार खाई है. दे हैव नथिंग टू ईट एथर एक्सेप्ट कैरेट्स, टर्निप्स एंड रेडिशेस. व्लादिमीर है वो जो प्रिटेंड करता है कि उसने वो इन चीज़ों को पसंद करता है. बट एस्ट्रैगन इज़ फ्रैंक इनफ टू कन्फेस दैट इट बिकम्स मोर एंड मोर अनबीरेबल एज ही टेक्स इट. उनको व्लादिमीर जो है वो तो कहता है कि मुझे ये जो कैरेट्स और टर्निप्स और रेडिशेज हैं ये पसंद है, इसलिए मैं इनको खा लेता हूँ. लेकिन एस्ट्रैगन जो है वो सीधी और साफ बात कर देता है कि बस अब उसके लिए बस हो गया कि वो अब इनको खा सके. फिर वो खुदकुशी के बारे में सोचते हैं. फिर बाद में पोजो और लकी आते हैं. पोजो जो है वो लकी के गले में रस्सी बांध के लाता है. ये भी एक किस्म की ह्यूमन मिजरी को शो करता है. इट इज़ अ पोजो हु एक्सप्रेस द मिजरी ऑफ ह्यूमन अलॉट इन स्ट्राइकिंग मेटाफर ऑफ द बर्थ एस्ट्राइड अ ग्रेव एंड द वर्स्ट सफरिंग ऑफ दैट बोथ पर्पसलेस एंड विदाउट द कंसोलेशन ऑफ होप्ड फॉर एंड. इसमें जो है पोजो भी सफ़र करता है और लकी खुद भी सफ़र करता है. पोजो जो है वो ब्लाइंड हो चुका है और लकी को कुछ बात दूसरे एक्ट में ये कुछ सुनता नहीं है. फर्स्ट एक्ट में जो है वो नेक्स्ट थीम में बताती हूँ कि जो थीम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है. एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं द एक्शन और फैक्ट ऑफ ट्रीटिंग समवन अनफेयरली इन ऑर्डर टू बेनिफिट फ्रॉम देयर वर्क. किसी को एब्यूज़ करना, किसी पे डिक्टेटरशिप के साथ हुक्म चलाना. द थीम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इज़ ओनली इम्प्लिसिट इन द मेन स्टोरी बट इट इज़ एक्सप्लिसिट इन द एपिसोड ऑफ पोजो एंड लकी. ये ज़्यादातर ये थीम पोजो और लकी ने शो किया था कि जब पोजो उसको ऑर्डर करता है लकी को कि वो कुछ बोले, कुछ सोचे ताकि वो इनको ये जो है व्लादिमीर और एस्ट्रैगन इनको एंटरटेन करने के लिए वो कुछ सोचे, कुछ बोले. तो तब वो लकी स्पीच करता है अपनी. उसकी खुद से वो कुछ नहीं सोचता, कुछ नहीं बोलता. उसको जो कहा जाता है वो ही करता है. फिर जो है एस्ट्रैगन वो उसके टीयर्स देख के उसके साथ सिंपथी का इजहार करता है, उसके आंसू साफ करने के लिए जाता है. लेकिन जो है लकी वो उसको किक करता है कि वो उसके पास भी ना आए, उसको ये सिंपथी नहीं चाहिए. ये सब थीम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन में आता है. पोजो स्टेट्स दैट इट वाज जस्ट वंस दैट लकी फेल्ड टू ओबे अ कमांड ऑफ हिज इवन व्हेन पोजो हैज़ बिकम ब्लाइंडेड. Lucky doesn't have the guts to free himself from his enslavement. पोजो खुद भी कॉन्फेस करता है कि जो लकी है वो पहले बहुत अच्छा था, नोबल था. उसने उसे बहुत कुछ सिखाया है पोजो को. पहले वो उसका दोस्त था, उसका टीचर था, लेकिन अब वो किसी तरह से उसका ना गुलाम बन चुका है. इसका कंक्लूजन में यही आता है कि दीज थीम्स ऑफ वेटिंग फॉर गॉडट पोजेस एन एग्जॉस्टिबल richness of meaning and implications. The play ends on a strange note of hope and उम्मीद and उम्मीद के जी
गोडोट कल ज़रूर आएगा, कल नहीं फिर अगले दिन ज़रूर आएगा, फिर उनका वेट जारी रहता है। The tramps would be able to come by a piece of rope with which to hang themselves the next day. Waiting for Godot is many-faceted play. Its meanings and implication is complex. It is possible to look upon it as a clever farce or view it as a tragic exposition of human predicament.